کچھ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اس کے اندر ٹائم لائن کوئی نہیں ہے، کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں۔ شروع سے چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پر حماس کو انگیج کیا جائے۔ یہ جو اپنے یرغمالی ہیں جو ان کے بالکل ناک کے نیچے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگا سکے۔ اسرائیل کے اندر سے ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ اب آپ سوچیں محمود عباس انہوں نے کچھ نہیں کیا اتنے سالوں میں۔ بات کر لیتے ہیں غزہ کی صورتحال کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے امن پلان جاری کیا ہے، اور اس امن پلان کے حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ دیگر ممالک بھی بحث کر رہے ہیں۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر نے حماس کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور کہا ہے کہ حماس کے جواب کا انتظار ہے۔ اگر حماس نے قبول نہ کیا تو اسے افسوسناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امن منصوبے پر بات چیت کی گنجائش کم ہے۔ حماس یرغمالیوں کو رہا کر کے اچھے رویے کا مظاہرہ کرے، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق 20 نکاتی امن پلان کو بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فلسطین سے یورپ تک ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ جامع معاہدے، انسانی امداد، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی انخلاء اور 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ منصوبے کا اچھی نیت سے مطالعہ کر رہی ہے، مگر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حماس نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ کی حکمرانی کے لیے کسی غیر ملکی ادارے کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹونی بلیئر ہماری قوم کے لیے ناقابل قبول شخصیت ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت مسلم ممالک کی جانب سے جنگ بندی اور 2 ریاستی حل پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گتریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے امن کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے اہم کردار کو بھی ساتھ ہی ساتھ سراہا ہے، اور کہا ہے کہ جی تمام فریقین معاہدے پر عمل درآمد کریں اور اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ معاہدے اور اس کے نفاذ کے لیے جو تمام فریق ہیں ان کا پرعزم ہونا ضروری ہے، مگر صہیونی وزیر اعظم نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں نہیں ہے، امریکی صدر سے فلسطینی ریاست پر کوئی اتفاق نہیں ہوگا اور کسی صورت فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، اور انہوں نے دھمکی بھی لگا دی ہے کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ اسی تمام تر صورتحال پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو سنا پاکستان سر۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فلسطین سے یورپ تک ٹرمپ کے اس امن منصوبے کو بھرپور حمایت مل رہی ہے، کیا غزہ امن پلان فلسطین کے 2 ریاستی حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے باقی حقیقی معنوں میں؟ بہت شکریہ ماہم عزیر، آپ کا مجھے انوائٹ کیا آپ نے۔ دیکھیے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو اپریہینشنز ظاہر کی ہیں وہ معنی رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا خیال ہے دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہے گا کہ امن نہ ہو اس ایریا میں، اور یہ قتل و غارت جو اسرائیل نے تقریباً 2 سال سے شروع کی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ یہاں تک تو ہم سب پوری دنیا متفق ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں یا جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ آپ نے خود ہی آخری بات جو کہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کل کہا کہ اس میں 2 اسٹیٹ یعنی کہ فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ ہم مانے ہیں نہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور اگر بنیاد سے اتفاق نہیں کرتے جس کی وجہ سے 78 سال میں لڑائی چل رہی ہے تو پھر اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو مجھے اس پر کنسرن ہے، دوسرا اس کے اندر ٹائم لائن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ہر ایگریمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں۔ کنڈیشن اس طرح بہت زیادہ ہیں کہ جو کارڈ ہے ایک قسم کا کہ عمل درآمد ہوا کسی بات پر یا نہیں ہوا، اس کی ججمنٹ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے یا اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ایک اور بڑا معنی خیز اور کنسرن کا لفظ ہے ایئر پاور اسٹوڈنٹس، میں جس پر غور کر رہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بومبنگ سسپینڈ ہوگی۔ اب یہ سسپینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کو وقتی طور پر روکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ہم کنٹینیو کب کریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بومبنگ سٹاپ کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا خطرناک جملہ ہے جس سے مجھے لگا تھا کہ یہ اس کا مطلب اتنی سیریس کنڈیشن ہے، اور جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ججمنٹ تمام کی تمام اسرائیلی وزیر اعظم کی ہوگی۔ اور ایک اور خطرناک بات جو اس کے اندر یہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اگر کبھی وائلیشن ہوئی تو میرا سارا وزن جو ہے یا بیکنگ میری ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہی جج، وہی جیوری اور سب کچھ ایگزیکیوشن وہی کریں گے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے لگتا ہے، میں نیگیٹو پہلو اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، میں پیسمسٹ بالکل نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی
एक उज़ैर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मल रोल कोई नहीं है, यानी कोई भी, ऑल्दो पहले भी कोई बहुत सालों से यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं रहा सिवाय कंडेम करने, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है एड्रेस होनी चाहिए थी। नेट आउटकम सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था कि 2 स्टेट बाद में बनेगी, चले जब भी बनेगी। और मोस्ट क्रिटिकल लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि हमास जिसने एक स्ट्रगल की है उसी की वजह से इजराइल को भी कुछ कीमत देनी पड़ती थी या पड़ती रही है इतना अरसा, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप उठाकर बाहर फेंक देंगे। अगर ये उठाकर बाहर फेंकी जा सकती जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा उनकी कोई जगह नहीं है, तो फिर ये इजराइल कर चुका होता इतने दहाइयों में। नहीं हुआ, कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस इजराइल से नहीं हुई। मिलिट्री फोर्स से हमास ने रेजिस्ट किया, फ़लस्तीन के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये हुआ है, लेकिन उसको इंगेज नहीं किया गया। श्रीलंका में, न्यू आयरलैंड में, जहाँ पे भी मुज़ाकरात हुए हैं ऐसी रेजिस्टेंस मूवमेंट से उनको इंगेज किया जाता है और उनको नेगोशिएट किया जाए, चाहे उनकी 10% मानी जाए या कोई वे फॉरवर्ड उनको निकाला जाए। लेकिन इसके अंदर मैं नहीं फोर्सी कर रहा कि इसके अंदर कोई एब्सोल्युटली ऐसे किया गया है कि उनको रेलेवेंट कर दिया जाए कि उनकी फाउंडेशन या फॉलोइंग है वहाँ पर, उसका भी कोई हल होना चाहिए था। तो उसका भी कोई हल होना चाहिए था। अच्छा खालिद साहब, अब ये अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हम देख रहे हैं कि हमास को 4 दिन की डेडलाइन दी है। ये मंसूबा हमास के लिए कितना काबिल अमल है? हमास इस पर अग्री करेगा? आपका सवाल दोबारा कीजिएगा तो कट गया। जो डेडलाइन की दी गई है इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वो 4 दिन की है। अब 4 दिन के बाद अगर सूरत हाल बदल जाती है, हमास इस पर लेट्स सपोज अग्री नहीं करता, तो क्या सिचुएशन होगी? और अगर इस मंसूबे पर हमास अमल दरामद कर लेता है तो ये काबिल कबूल है उसके लिए? जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ माम, बहुत मुश्किल है और इसमें शुरू से चाहिए था कि किसी न किसी स्टेज पर हमास को एंगेज किया जाए, चाहे इनडायरेक्टली किया जाता, किसी अरब मुल्क के थ्रू किया जाता, पाकिस्तान या कोई और, कतर ऑलरेडी कर रहा था, उसके थ्रू एंगेज किया जाता ताकि उसको एक कंफर्ट लेवल पर लाया जा सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि 100% उनकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं थी, उसको दहशतगर्द मूवमेंट कहा जाता है, लेकिन उसने ही रियलाइज करवाया है इजराइल को प्राइस देनी पड़ेगी, उसी ने एक नुमाइंदगी की है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। महमूद अब्बास जो इस वक्त वजीर आज़म हैं वो तो 20 साल से हैं, 2005 में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन आया वो कर पाए इस 20 सालों के अंदर कोई नेगोशिएशन या कोई ले सके? वो गाजा की जंग भी नहीं रुकवा सके अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखना ये होता है कि इजराइल किस वजह से मजबूर हुआ है। इजराइल इस वजह से भी मजबूर हुआ है कि एक और चीज़ देखें, इजराइल की जो कैपेसिटी है, जिस तरफ हम लोगों को जानना चाहिए। इजराइल ने पूरे जोर के साथ हमास की लीडरशिप को, इस्माइल हानिया को ईरान में आकर और बहुत सारी जगहों पर लीडरशिप को मैसिवली ज़ाहिर एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया। उसकी इंटेलिजेंस का ये आलम था कि उसको एक एक मूवमेंट पता थी, कतर की भी पता थी और बहुत सारे मुल्कों में जब किया। लेकिन ये जो अपने यरगमाली हैं जो उनके बिल्कुल नाक के नीचे हैं, उनको नहीं पता लगा सके उनका, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी, लोगों में बहुत मायूसी फैल रही थी इजराइल की, उसका वोट बैंक ड्रॉप हो रहा था। अक्टूबर 2026 में नेतन्याहू ने इलेक्शन में जाना है, नए इलेक्शन में इजराइल के, तो उसको ये लग रहा था कि अगर मैंने कुछ भी ना दिखाया और सिर्फ मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया तो उससे पहले भी शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अलायंस के हैं, यानी उनका एक अलायंस है उस पार्टी के साथ, उन्होंने तो माना ही नहीं है इसको। उन्होंने कहा ये तो हमें कबूल ही नहीं है जो नेतन्याहू ने कर दिया। तो अभी से ही जो शक व शुबह के बीज उनकी तरफ से बोए जा रहे हैं। और जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था तो मेरे वो शक व शुबात नहीं थे, मेरे कंसर्न थे कि ये इसका एड्रेस होना चाहिए। इजराइल के अंदर से ही मुखालफत शुरू हो गई है, अब आप सोचें। और ये सबसे खतरनाक बात इसके अंदर बाम जो आपने सवाल किया है, देखिए किसी स्टेज पर भी एग्रीमेंट हो भी जाए तो वो हमास का नाम लेकर स्टेज मैनेज किया जा सकता है, सारे का सारा इजराइल और अमेरिका की तरफ से स्टेज मैनेज इस तरह किया जा सकता है कि आप खुद ही किसी जगह स्ट्रक पर अटैक करवाएं और आप कहें क्योंकि हमास ने हमले बंद नहीं किए तो हम इस एग्रीमेंट में नहीं है, नो मोर। उस वक्त तक उनके याद रखिए इजरायली जो यरगमाली है वो रिहा हो चुके होंगे, बहुत सारे मुसलमान मुल्क इजराइल को शायद कबूल भी कर चुके हों। तो ये मैं एक कंसर्न के साथ सारे को देख रहा हूं, ताकि मैं इसलिए हाजिर हूं कि आपके व्यूअर्स को अंदाजा हो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो खतरनाक बाद में साबित हो सकती है। खालिद साहब जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा, बड़े अहम पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। ये बात कितनी खतरनाक है, मतलब जो बात हो रही है कि इसराइल फ़लस्तीन का या गज़ा का अपने साथ इल्हाक नहीं करेगा और ना ही उसके ऊपर कब्जा करेगा, एक जनाब टेक्नोक्रेटिक सा सेटअप जो है वो बनाकर दे दिया जाएगा और पीस बोर्ड जो है वो निगरानी करेगा। तो सर ये तो उसी तरह का मामला नहीं है जिस तरह से हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि
मतलब इल्हाक नहीं कर रहे, लेकिन निगरानी के नाम पर वहाँ पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं एक अरसे से, इसी तरह का या बल्कि इससे बदतरीन इसकी शक्ल हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर अगर ये मुआहदा हो जाता है? जी उज़ैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आप एक और चीज़ नोट करें जो भी यानी श्योर आपके व्यूअर्स भी एग्री करेंगे, इसमें वेस्ट बैंक का कोई जिक्र ही नहीं है। ये गाज़ा की बात हो रही है और गाज़ा वो जगह है जहाँ पर 1991 में जब ये सेटल किया गया फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइलियों को यहाँ पर इन जगहों पर, तो उस वक्त उनकी आबादी कोई 7,500 थी और आज वो 7.5 लाख है। आप देखिए जरा, और ये वही जगह है जहां पर हमास ने 2 साल पहले हमला किया था। यानी वो समझते थे कि ये इलीगल सेटलमेंट है जिसकी वजह से। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसके पास माइट सारे का सारा, पावर सारे का सारा इजराइल के पास उसी तरह इंटैक्ट है। हमास को आप चाहते हैं वो डीआर्म करें और डिसआर्म करके चले जाएं यहाँ से, और कहाँ चले जाएं ये कोई नहीं कहता। एक और पहलू भी बड़ा कंसर्न का है, वो ये है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए यहाँ से फ़लस्तीनियों को कहाँ ले जाएंगे जो गाज़ा में इस वक्त हैं। कहा जा रहा है कि वो नेबरहुड में मुल्कों में रहेंगे। अब वो अपनी स्पेस छोड़कर चले जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पर। वो कितना लीगल होगा? कल को इजराइल की मर्जी होगी किसको आने देता है कि नहीं आने देता। तो हमें ये डिस्कस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ओवरऑल ब्लड शेड रुकना बहुत खुश आइंदा है, इसमें कोई भी नहीं चाहेगा। मैंने पहले जुमले में कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि ये रुक रहा है, खून जो बह रहा है ना हक, लेकिन आया इसको कैपिटलाइज किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी, मिसयूज किया जाएगा और जजमेंटल रखा जाएगा, कंडीशनल रखा जाएगा। ये असल में कंसर्न है हमारा इस वक्त। और खालिद साहब, अगर ये मंसूबा वाकई फ़लस्तीनियों के लिए, तो ट्रम्प के अगर अमन मंसूबे की बात करें तो उन्होंने बेगुनाह हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत का कोई जिक्र ही नहीं किया और ना ही नेतन्याहू के एहतसाब की कोई बात की है। तो गज़ा में इसराइली दरिंदगी का एहतसाब कितना ज़रूरी है? क्योंकि फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं हज़ारों शहादतों का जिम्मेदार तो आखिर इसराइली है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? जी माहम, इवन आप पहले मैं एक छोटा सा जिक्र करता चलूं, कतर का जो ऐलान हो रहा है मीडिया के ऊपर कि जी वो माफी मांग ली है, वो ये भी नोट करें, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है और ना ही इजराइल की हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी है कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने बात करने की बात कर रहे हैं। तो अब अभी से देखें कि कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है डिफरेंट तरीकों से। 3 मुल्कों के दरमियान बात हो रही है और 2 कुछ और कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा और ये कतर के कह रहे हैं कि हो सकता है की हो, मैं मेरे पास तो कोई गवाही नहीं है, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हम माफी मांग ली है कतर के वजीर आजम से, इजराइल के वजीर आजम। एक बात जो आप कह रहे हैं, और दूसरी आपने सही कहा कि जो कत्लो गारत होता रहा है, ये देख लें आप किस बेरुखी और जिसको कहते हैं वो सख्त दिली के साथ दुनिया देखती रही, और ख़ास तौर पर अमेरिकन भी देखते रहे और सदर भी देखते रहे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उसके अंदर वो नहीं रोक पाए। तो मैं आगे जो एप्रीहेंशन इसी बुनियाद पर अपनी जाहिर करना चाह रहा हूँ कि जब भी अमरीकी सदर को लगा और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये चीज़ें उस तरह नहीं हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपके ये कहा कि वो कह रहे हैं कि अगर हम समझेंगे कि जब ये हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई भी हमास का फैक्शन या हमास खुद जेन्युइनली या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि दोस्ती तो है ना इजराइल और हिंदुस्तान की, फॉल्स फ्लैग में इनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो पास करें कि भाई खुद ही हमास का एक अटैक करवाओ और उसके बाद हमास पर चढ़ दौड़ो, उसी तरह जहाज़ों की बमबारी शुरू हो जाए, हॉस्टेज आपके पास जा चुके होंगे, दुनिया को कहेंगे हम तो अच्छे बन गए थे, लेकिन ये तो हमास ने सारे का सारा बिगाड़। इसकी एश्योरेंस कौन देगा? इसके अंदर अभी भी देखें सारी की सारी सुपरविजन या वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास है या टोनी ब्लेयर के पास है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और 40 मिनट में वाशिंगटन पहुंच जाएंगे, और चढ़ दौड़े थे पूरी फौज के साथ अमेरिका के साथ मिलकर। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक रिकॉर्ड उनका अच्छा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी दुनिया से कि मुझे मिसलीड किया गया था। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी इस मामले पर। खालिद चिश्ती साहब, अमरीकी सदर ये कहते हैं कि इस अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है, मगर कतर ने वाज़ेह किया कि ट्रम्प मंसूबे की कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है, वजाहत तलब हैं ये निकात। सर, अगर हमास की जानिब से कुछ तरमीम जो हैं वो इस मामले में सामने आती हैं, कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने रखी जाती हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस के कितने ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं? क्योंकि जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं, ऑब्वियसली हर बंदा ये समझ सकता है कि क्या कंसर्न्स हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद ये जो मुआहदा है ये होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए उज़ैर, जो मैं कल से प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने तो ऑलमोस्ट इस डील को जो वन साइडेड उनकी तरफ से फ्लोट की गई है, मुझे उसमें लॉक कर दिया। उन्होंने कहा इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कोई अमेंडमेंट की अब। और मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि ये पहले इंगेजमेंट होनी चाहिए थी हमास से। पूरी दुनिया में जब इस तरह की रेजिस्टेंस होती है और जब सेटलमेंट होती है, या तो आप कब्जा कर लें आर्म्ड करके, वो तो एक और चीज़ है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं
तो आपके फेयर चांस एक देते हैं, उसमें परसेंटेज वेरी कर सकती है, आप दोनों साइडें क्लेम कर सकती हैं कि किसको ज्यादा शेयर मिला है, किसको कौन ज्यादा जस्टिफाइड है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का तो कोई मूड नहीं लग रहा। कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस पर हमला कर दिया गया। थिंकिंग के लीडरशिप रहेगी नहीं तो फिर बातचीत किससे होगी। लेकिन हमने ये देखना है कि आया उसको कोई फेस सेविंग मिलेगी हमास को और उनके फॉलोअर्स को भी, क्योंकि देखिए उसके सिंपथाइजर्स भी बहुत हैं, क्योंकि महमूद अब्बास का जिसका मैं जिक्र कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया इतने सालों में। तो ये स्ट्रगल का जगह ही बनी तब थी जब ये फलस्तीनी लोगों को पता लगा और उन्होंने हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और हमास ने ये समझ लिया और कंफर्म किया, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता था, ये भी ज़हन में रखिएगा हमास ने इस खत्ते में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो आर्म स्ट्रगल के अलावा चॉइस ही नहीं है। ये वोट पड़े थे इनको, अब वो इनको एंगेज किए बगैर आप समझें कि ये हमने डील क्लोज कर दी है। लेकिन जब भी आप नॉन स्टेक होल्डर्स या लेस स्टेक होल्डर्स के साथ डील फाइनलाइज करेंगे वो लास्टिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, यानी ये इस तरह की डील जो है वो लास्टिंग नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।